Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, we are going to solve the exercise 2.1 which is related to the chapter exponents or powers. Okay, so just see the first question. Simplify and write the answer in exponential form. Okay, so first of all you have to see which pattern the question is of. Okay, so which law does it hold? So according to that law we are supposed to solve following those steps. Okay, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको लॉज के बारे में बता दिया था, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉज का लर्न होना ज़रूरी है। आपको लॉज पहले से ही लर्न करके रखना पड़ेगा, तभी आपको ये पता चलेगा कि किस लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। ओके, सो हेयर द बेसिस आर सेम बट देयर पावर्स आर डिफरेंट एंड दे आर इन द relation of multiplication. So here first law will be applicable. So just see the solution of this one. The first part of question number 1 is this: 5 cube into 5 to the power minus 4. You have to simplify it and then afterwards you have to write in the exponential form. तो यहाँ पर हम लोग लॉ लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सोल्यूशन है वो देखिए आप। सिंस a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Okay, by the law this one, so it is implies that 5 cube into 5 to the power minus 4 is equals to 5 here. According to this law of a, the value of a is 5 here and m is 3 and n is 4. तो m 3 plus, ध्यान दीजिएगा प्लस साइन तो हमें प्लस करना ही है बट इट इज हैविंग माइनस साइन ऑलरेडी, तो वी हैव टू जस्ट गिव द माइनस साइन ऑफ इट टू हियर. 5 plus minus 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 4, then here you will be getting 5 minus 1. Okay, so it is the solution of your this part. Now just see the its C part. Okay, the C part is this 2 by 3 to the power minus 5 into 2 by 3 to the power minus 5. Okay, यहाँ पर भी आपका सेम लॉ ही यूज होगा. लॉ नंबर 1 दैट इज a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Accordingly, we will be just solving it as 2 by 3 to the power minus 5 into 2 by 3 to the power minus 5 is equals to 2 by 3 to the power minus 5 plus minus 5. Okay, then here 2 by 3 minus 5 plus minus minus 5, then it will give you 2 by 3 to the power minus minus plus, so it will give you minus 10. Okay, so this is your answer. Now B part and D part you have to do from your own, ताकि आपको समझ में आए कि क्या जो मेथड मैं बता रही हूँ वो आप का हेल्प से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is simplify and write the answer with positive exponents. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमें लिखना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, देन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखना है बट पॉजिटिव एक्सपोनेंट. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर रहे थे तो हमारे एक्सपोनेंट्स नेगेटिव भी आए थे, बट इन दिस केस आपको एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाना है, जिसका लॉ आपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस सॉल्यूशन. It is 10 to the power minus 5 divided by 10 to the power minus 2. Okay, so which law is applicable here? Bases are same and the powers are different and the relation between them is division. तो क्या होगा? a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. Okay, following this law we will be solving this question, so it will give you 10 to the power minus 5 divided by 10 to the power minus 2 is equals to 10 to the power -5. देखिए एक माइनस इसका है, देन इसके पास माइनस ऑलरेडी था, सो -2. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर माइनस साइन है सो ये दोनों सेम हो जाएंगे. नो, इट इज़ रॉन्ग. आपको ये माइनस साइन तो यूज़ करना ही करना है, बट अगर कोई भी इंटीजर के पास इंडिपेंडेंट उसका साइन है तो उसका साइन आप इग्नोर नहीं करेंगे. अगर ऐसा करेंगे तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज रॉन्ग. ओके, सो 10 to the power minus minus plus minus 5 plus 2. So how will you be getting here? -3.
ओके, -3 आपका रिजल्ट आ रहा है, बट आपके क्वेश्चन में क्या है, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो देखिए कि आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, नो इट इज़ नॉट पॉजिटिव। तो आपको पता है, मैंने बताया था, इफ़ एनी नंबर इज हैविंग a टू द पावर -n, सो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a टू द पावर n। तो यूजिंग दिस वन क्या हो जाएगा आपका आंसर, 10 to the power -5 divided by 10 to the power -2 is equals to 1 by 10 to the power 3, या इसको हम रीड करते हैं 10 क्यूब। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 A पार्ट। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, इट इज़ द B पार्ट। सो फॉर सॉल्विंग दिस देर आर 2 मेथड्स। आप चाहे तो आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका ऐसे है, B को आप 4 टाइम्स लिख सकते हैं, B स्प्लिटेड फॉर्म में, अपॉन B स्क्वायर मीन्स B इंटू B। So this B will cancelled out by this one and this will be by this one. So how much you got, B into B, which means B square. And देखिए यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ओके, एंड द अदर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस by using this identity, so here you will be having B to the power 4 divided by B square is equals to B to the power 4 minus 2 means B square. It is the answer. Out of both methods you may opt any one, जो भी आपको सुटेबल लगे। ओके, जस्ट सी द C पार्ट इज सिमिलर टू द A पार्ट, तो ये आपको खुद से करना होगा। नाउ लेट्स मूव फॉर द D पार्ट। ये आपका D पार्ट है। अगर आपने लॉज लर्न कर लिए हैं तो आप देखकर ही समझ जाएंगे कि हेयर 2 लॉज आर एप्लीकेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट इम्प्लीमेंट द लॉ, फर्स्ट वन हेयर, देन उसके बाद इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा तो इस वाले टर्म के साथ उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ लगेगा, विच वॉज यहाँ पर है, सिंस a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. By using this one आप इसको solve करेंगे, this will give you 6/7 to the power 8 divided by, directly here we are doing 6/7, 5 plus 3. This will give you 6/7 to the power 8 divided by 6/7 to the power 8. Okay, now both are in the relation of division and bases are same and coincidence is there, this exponents are also same। तब भी हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ऐसे लिखेंगे 6/7 to the power 8 minus 8, this side you may write since a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n। इस तरीके से भी आप लॉ लिख सकते हैं साइड में, जहाँ पर आप उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन दैट स्टेप राइट हैंड साइड में, पर आप लॉ को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस विल गिव यू 6/7 टू द पावर 0। एंड मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। आप लिखेंगे सिंस a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो योर आंसर इज 1। अब इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि हेयर यू आर नॉट सपोज टू यूज़ इक्वल साइन। तो आप यहाँ पर हर नेक्स्ट स्टेप के लिए इट इज़ इम्प्लाइज दैट का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इक्वल साइन इसलिए नहीं यूज़ होगा क्योंकि इक्वल साइन इक्वेशन में यूज़ होता है, बट अभी आप इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये इक्वेशन है, ये टर्म का सॉल्यूशन इस टर्म के सॉल्यूशन के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ बीच में इक्वल साइन यूज़ हुआ है। इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा। इसलिए अभी तक के लिए आप जान लीजिए कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं यूज़ होगा, हेयर यू विल बी यूजिंग द सिंबल ऑफ इट इज इम्प्लाइज दैट। ओके, सो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस proceed for the question number 3. Now the question number 3 is simplify and express the result with positive exponents. Okay, यहाँ पर भी simplification करना है and उसके बाद उसके result को positive exponent के form में convert करना है। If you just see the first part of this question, x to the power -3 whole to the power 4. Okay, तो here third law is applicable here, third or no not the third one, you can just see which number is that। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लॉस एक सीक्वेंस में ही लर्न किए जाएं या उनको उसी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाए, वो रैंडमली भी यूज़ हो सकते हैं और रैंडमली भी लिखे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ a टू द पावर m होल टू द पावर n है। इस केस में पावर्स जो होती है, पावर की पावर, वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो नाउ दिस पार्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द b पार्ट। So the b part is 45 to the power 1/3
होल टू द पावर -6. ओके, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर लॉ जो इम्प्लीमेंट होगा वो कौन सा होगा, सिंस a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m इंटू n. और ये तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा लॉ लग रहा है जब आपने लॉज को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा और उनको लर्न किया होगा. ओके, सो इन मैथ्स नथिंग कैन बी लर्न एक्सेप्ट द फॉर्मूलाज. तो फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे. -6 इज इक्वल्स टू 45 टू द पावर 1/3 इंटू -6. ओके, सो 3 2s are 6. You will get here 45 to the power -2. इतना मिला आपको. एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट का रिजल्ट देना है. सो इट इज़ नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, 1/45 स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे सिंस a to the power -n is equals to 1/a to the power n. Okay, so you have got the solution of question number 3, B part. Now just see the D part here. It is a into b whole square by b, then whole square whole to the power -2, then whole to the power -4. Okay, so let's solve it. The D part is this one. इसके लिए सबसे पहले हम, क्योंकि देखिए यहाँ B सबसे पहले सिंपल ब्रैकेट को देखेंगे, इसके अंदर B न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहले हम B को रिजॉल्व करेंगे. हाउ, just see it here. It is b square and it is b. b square means b is here 2 times, so this b will cancel the power. Power क्यों, क्योंकि 2 ही b होंगे तो पावर हट जाएगी अब. Okay, so then afterwards you will be getting, यहाँ पर मिलेगा आपको ab to the power -2 whole to the power 4. Okay, then पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो आप क्या करेंगे, ab -2 into 4. Here you will be writing since a to the power m whole to the power n is equals to a to the power m into n. It is to be written, must, it is must to write. Okay, so here you will be getting ab to the power -4 2s are 8. बट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए. तो इसके बाद क्या होगा, 1/ab to the power 8. And here you will be using, it is implies that for each step. And this side you will be writing since a to the power -n is equals to 1/a to the power n. Okay, so you have solved the question number 3. Now let us move for question number 4. The question number 4 is evaluate, है ना. आपको क्या करना है, evaluate करना है, इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है कि क्या मिलेगा आपको, उसको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी द आइडेंटिटीज आर एप्लीकेबल है. मैंने आपको बताया है अगर कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. ओके, सो इट विल ऑल्सो बी हैविंग 1 एंड दिस विल ऑल्सो बी हैविंग 1. 1 into 1 will give you 1. Just like this. This is the solution of 4th A part. Since a to the power 0 is equals to 1, it is implies that 7 to the power 0 is equals to 1. 9 to the power 0 is also equals to 1. Then multiply करेंगे तभी आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1. Okay, now just see the B part here. B part is also very simple. Here it is x cube to the power 0. Okay, तो first of all आपको क्या करना होगा, since a to the power m whole to the power n is equals to a to the power m into n. Using this one आप क्या करेंगे, x to the power 3 into 0. So this will give you how much, x to the power 0. And just now I have told you that any number having power 0 will be giving the value of 1. Okay, so this is the B part. Now just come to C part. It is the C part, -1/3 to the power 0 plus 1/5 to the power 0 whole divided by 6 to the power 0. तो आप यहाँ पर लिख देंगे since a to the power 0 is equals to 1, it is implies that जहाँ जहाँ इस फॉर्म में है नंबर्स उनको आप 1 कर देंगे. 1 plus 1 divided by 1. So how much will you get from here? 1 plus 1, 2 divided by 1. So you know very well that division by 1 will always give you the same number. So 2 is your final answer. Okay, now just see the D part. It is most important and most asked question yet.
Okay, 1 to the power 0 plus 2 to the power 0 plus 3 to the power 0 whole divided by x to the power 0 plus y to the power 0. As I have told you, any number having power 0 will always give you 1. ये 1 नहीं होगा, it will give you 0. This will also give you 0 and this 2. Okay, सबके प्लेस पे आप 1 लिख देंगे. 1 plus 1 divided by here also 1 plus 1. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, इट इज़ नॉट अ टफ वन, बट इसको बस आपको ध्यान देने की जरूरत है. बच्चे इसको मोस्टली कहते हैं 1 + 2 ऐड कर देंगे, फिर 3 ऐड कर देंगे, देन दे विल मेक इट रॉन्ग. देन 3 divided by 2 means it is your 3/2. It is your final answer. Okay, so this question number 4 have been solved. Now let's proceed for the next question. See the question number 5. Here simplification you have to do, and if you will just observe the parts, then it is similar to question number 2 or 1. Okay, mostly it is all the questions are similar to question number 1. Okay, so this question I am not going to tell you, आप इसको खुद से solve करेंगे and most probably आप सारे parts solve करने में capable होंगे. Okay, now just see the question number 6. Here also you have to do the simplification by using different laws. So let's solve the first part. See the question number 6, A part. It is 4 to the power 2 into 5 to the power minus 2 in one bracket, then other 4 to the power 2 divided by 5 to the power 2. If you will just observe here, then powers are same. Most probably here only sign is different and but the bases are different. तो इस वाले में हम लोगों ने इसके लिए भी लॉ पढ़ा है. सबसे पहले तो हम इसके पावर को सेम कर देते हैं. पावर को सेम करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इसका निगेटिव है, हमें इसे पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा. सो इट विल बिकम 4 स्क्वायर इंटू 1/5 square, and it is 4 square divided by 5 square. Okay, now you can write it as, since 1/5 square is there, आप इसको 1/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप चाहे स्क्वायर करें या क्यूब करें या चाहे जितनी पावर कर दें उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी. सो यू मे जस्ट राइट इट लाइक एज 4 स्क्वायर इंटू 1/5 square. Okay, divided by 4 square. Okay, अब यहाँ पर a to the power m into b to the power m का केस है. इस केस में आप क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the power m. Okay, using this identity let's just solve it here. तो क्या हो जाएगा, 4 into 1/5 square, then you have to just write it as divided by. okay, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/5. अब यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसी से रिलेटेड कि जब पावर सेम होंगी एंड बेसिस डिफरेंट होंगे तो उनका आपस में रिलेशन हो जाता है. मीन्स इट कैन ऑल्सो बी रिटन 4/5 स्क्वायर. ओके, हाउ, जस्ट सी, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है, सिंस a to the power m divided by b to the power m is equals to a divided by b to the power m by this identity. Okay, by this identity we can solve it. Okay, now let's move for the next step. यहाँ पर देखिए बेसिस भी सेम हो गई हैं, पावर्स भी सेम हो गए हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिस को रहने दीजिए, 4/5 to the power 2 plus 2. Okay, so it will give you how much, 4/5 to the power 4. Okay, at this step we have used 2 laws. तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, सारे लॉज को अच्छे से तैयार करके तब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करिएगा. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट. ओके, 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15xy होल स्क्वायर. इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं. 5x स्क्वायर बाई 15xy होल स्क्वायर है. इसका मतलब होता है 5x स्क्वायर अपॉन, इस तरीके का भी मैंने आपको लॉ बताया है कि जब दोनों होल पर स्क्वायर रहेगा मीन्स ये इंडिपेंडेंट टर्म्स पर आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर.
Now just see, 5 is the factor of 15, so 5 3s are 15, and x square will be cancelled out by x square. So how much will be remaining here? Here only 1 and upon 3y square. Okay, so this is your final answer. Now let's see the next part. This is the C part. 5 to the power minus 1 divided by 4 to the power minus 1 whole to the power 3 means bases are different but their powers are same. तो आप लिखोगे since a to the power m divided by b to the power m is equals to a divided by b to the power m. Using this law, 5 divided by 4 to the power minus 1 whole to the power 3. ठीक है, पावर की पावर यहाँ दूसरी आइडेंटिटी यूज हो रही है. डिवीजन का मतलब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 इंटू 3. आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस a to the power m whole to the power n is equals to a to the power m into n. Okay, then just do it. 5/4 to the power minus 3. क्योंकि क्वेश्चन में आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया कि आपको इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है. बट अगर कहता क्वेश्चन में कि कन्वर्ट इट इनटू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आप क्या करते 4/5 टू द पावर 3 हो जाता. ओके, नाउ जस्ट सी द डी पार्ट ऑफ इट. दिस वन इज द डी पार्ट. यहाँ पर आप देखिए इन टर्म्स को. सो ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m की का लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो यूजिंग दैट लॉ लेट्स सॉल्व इट. सो -8/16 इंटू 16/5 to the power m divided by 4/5 to the power minus 1. आप इधर लिख देंगे since a to the power m into b to the power m is equals to a into b to the power m. ओके, आइडेंटिटी लिखना मस्ट है क्योंकि हमें ये बताना ज़रूरी है कि आप किस रूल के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सो this will give you how much? 16 will be cancelled out by 16, so it will give -8/5 to the power minus 1 divided by 4/5 to the power minus 1. फिर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है बट द पावर्स आर सेम, तो इनको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करेंगे कैसे? -8/5 डिवाइडेड बाई 4/5 टू द पावर माइनस 1. ओके, लिखने का तरीका इनका हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही यहाँ पर लॉ लिखना जैसे हमने अभी ऊपर लिखा वैसे ही लिखेंगे. a to the power m divided by b to the power m is equals to a divided by b to the power m. Okay, now this will result how much? -8/5 divided by 4/5 to the power minus 1. ओके, तो यहाँ पर कोई भी एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता इस तरीके से अगर वो फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिखा है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को आपने ऐसे केसेस फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको हम फ्रैक्शन को जो डिवीजन साइन के बाद होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, जस्ट लाइक दिस, है ना. एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसीलिए डिवीजन के साइन के बाद वाले फ्रैक्शन को हमें रेसिप्रोकल करना होता है. तो देखिए हमने 5 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला गया एंड इट वाज इन द न्यूमरेटर, सो इट केम इनटू डिनोमिनेटर. अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे. 4 2s are 8 and 5 डिवाइडेड बाई 5, सो इट विल गिव यू हेयर -2 ओनली इज रिमेनिंग एंड इन डिनोमिनेटर ओनली 1 -1. तो आपका रिजल्ट क्या हो गया? -2 टू द पावर -1. अगर आपको इससे पॉजिटिव बना के लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 1/-2 टू द पावर 1 मीन्स इसको आप लिख सकते हैं -1/2. इट इज़ योर आंसर. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं. इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर आउट होते जाएंगे. नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 7. Here it is find
एक्स सो दैट, ओके, आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द बी पार्ट, इट इज़ नॉट द टफ वन, जब मैं बी बता दूंगी तो आपको ए पार्ट खुद ही आ जाएगा, ओके। सो जस्ट सी द सोल्यूशन ऑफ इट. So the question number 7th B part is this one, 1 by 3 to the power minus 2 into 1 by 3 to the power minus 5 is equals to 1 by 3 to the power 2x plus 1. इसकी हेल्प से, इस गिवन इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखें कि क्या कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान दें तो येस, लॉ कैन बी यूज्ड हियर। कौन सा लॉ लगेगा, सिंस a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, है ना। सिंस द बेसिस आर सेम बट दियर पावर्स आर डिफरेंट, सो दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्व करते हैं। a है आपका 1/3, m इज -2 एंड n इज -5 इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 2x plus 1, ओके। प्लस माइनस माइनस, इट विल रिजल्ट 1/3 टू द पावर -2 प्लस माइनस -5 1/3 to the power 2x plus 1, okay. So minus minus it will result plus, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1/3 to the power -7 1/3 to the power 2x plus 1, okay. सो यहाँ पर आप देखिए, अब बोथ हैंड साइड्स में आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है, बोथ हैंड साइड में आपके बेसिस, यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है, बेसिस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है। इस केस में आप लिखेंगे हेयर यू विल बी जस्ट गिविंग द रीजन, क्योंकि इट इज़ द सिंबल ऑफ इक्वलिटी है, तो मतलब जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी तो सेम होंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल के रिलेशन में है ना, दोनों ही टर्म्स इक्वलिटी के रिलेशन में, इसीलिए इनके पावर्स भी सेम होंगे। तो हेयर यू विल बी जस्ट राइटिंग, आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस इट्स बेसिस आर सेम सो पावर्स विल ऑल्सो बिकम सेम। तो इट इज अकॉर्डिंग टू दिस -7 इक्वल हो जाएगा। अब हम बेसिस को नहीं लिखेंगे, वी विल बी जस्ट इग्नोरिंग द बेसिस। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और x पावर में है, सो 2x plus 1, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके सबसे दूर में जो नंबर रिलेटेड है वो है 1 इधर आएगा, अपनी साइड चेंज करेगा तो उसका रिलेशन भी चेंज होगा। 1 इज हैविंग प्लस साइन, सो माइनस इट विल कन्वर्ट 2x, सो माइनस माइनस प्लस, रिलेशन प्लस का होगा बट साइन माइनस का लगेगा। क्यों माइनस का लगेगा, बिकॉज इट इज -7 इज ग्रेटर देन -1, सो 2x, वैसे दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ही रहेगा, बट इफ़ इन केस अगर यहाँ प्लस साइन होता तभी माइनस ही लगता, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन हम लोग ऑप्ट करते हैं, ओके। अब हमें x और से 2 को हटाना है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 2 एंड x आर रिलेटेड विद द मल्टीप्लिकेशन रिलेशन, सो 2 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल्स टू -8/2, 2 4s are 8, सो x हैज़ गिवन यू -4। क्योंकि दोनों ही इक्वलिटी के रिलेशन में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, और मोस्टली वेरिएबल्स जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना होता है। तो हमने वेरिएबल, क्योंकि हमारा एक्स अभी राइट हैंड साइड में था, इसलिए हमने यहाँ इस स्टेप पर उसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया है। सो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, -4। इट इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि इस पार्ट की हेल्प से आप इसका ए पार्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। Now just see the question number 8. By what number should 5/7 to the power -5 be multiplied so that the product is 1? Okay, हम किस नंबर से इस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमें प्रोडक्ट क्या मिले, दिस वन, मतलब रिजल्ट हमें इतना मिलना चाहिए। हम इस कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको, तो हमें वो नंबर पता नहीं है, हम उसको कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो कोई भी नंबर है जिसका नेम x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंसिडर कर लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमें चाहिए वो क्या है, उसकी वैल्यू x है, वो x है, उसकी वैल्यू क्या है वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस x को जब मल्टीप्लाई किया गया, किससे मल्टीप्लाई किया गया, 5/7 to the power -5 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, 1, ओके। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस विल मूव टू दिस साइड, दिस होल टर्म, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इधर साइड जाएगा तो किस रिलेशन में हो जाएगा, डिवीजन में। सो 1 डिवाइडेड बाई 5/7 to the power -5, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये
डिवीज़न के साइन के बाद एक रैशनल नंबर है तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा इसको, तो हमें इस साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/5/7 टू द पावर -5। ओके, एंड आपको पता है हम लोग यहाँ पर लॉ भी देख सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा है 1/a टू द पावर -n है तो ये किसके इक्वल होगा, a टू द पावर n के, है ना। ये लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 5/7 टू द पावर 5। ओके, सो योर फाइनल आंसर इज 5/7 टू द पावर 5। x कौन सा नंबर है जिसको 5/7 टू द पावर -5 से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलेगा, वो ये है। ओके, चाहे तो आप इसका सिंपली वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जब इस वैल्यू को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे देन आपका बोथ द टर्म्स आर हैविंग लाइक सेम बेसिस, ये भी 5/7 है, ये भी 5/7 है, तो यहाँ पर -5 और +5 ऐड होंगे तो दैट विल गिव 0, एंड 5/7 टू द पावर 0 मीन्स आपको पता है दैट गिव्स ऑलवेज वैल्यू ऑफ 1। ओके, now just see the last question of this exercise. For any non-zero rational number x, which of the following statements are true? ओके, तो इनके अकॉर्डिंग आपको ये सारे जो नंबर्स है x क्या है, वो नॉन ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो आपको ये बताना है क्या स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स। तो हमने आपको लॉज बताए हैं, उन लॉज के हिसाब से आप इसको सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, एंड आई ask you or I suggest you to solve all these questions by pausing the video and just practice more and more question with the help of other books. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आप इनके साथ फ्रेंडली हो पाएंगे, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में मज़ा आता जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।